Hello everyone, my name is Ashish Rami. Today we'll focus on basics of management, subject that is principles of management. Today's topics are concept of management, functions of management, development of management thoughts, levels of management that is management hierarchy, roles of a manager, scientific management, administrative management. There we will focus on Henry Fayol's 14 principles of management, then principles of management. Okay, first of all we will see what is management. The word management came from where this word is used. Generally we use this word in our daily life as well as in many functions. What is the meaning of management? Here we can see, if we distribute the word manage plus man, T is silent here. The word came from old French management. The word is management. Its meaning is the art of conducting or directing. The Latin word that is manugere, it means to lead by the hand. If we see the definitions, management in all business areas and organizational activities are the acts of getting people together to accomplish desired goals and objectives. Management comprises planning, organizing, staffing, leading or directing and controlling an organization. Organization, there is a group of one or more people or entities. Management in short, it is all about PORTS Corp. It's a short form. There is planning, organizing, directing, staffing, controlling, coordinating, reporting and budgeting. Management is an art of getting things done through and with people, which is a very common and layman term language definition. The process by which execution of given purpose put into operation and supervise. Whatever the task given to us, how we implement or how we put into execution, that is management. Another definition, management is the art of securing maximum results with minimum of efforts. That means जो भी काम हमको मिलता है उसको हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा सकते हैं. That is management, so as to get maximum prosperity and happiness for both employer and employee. If we see the functions of management, basically 5 functions are there. There is planning, organizing, staffing, directing and controlling or evaluating. Now see what managers do. That means which are the functions of management. Managers generally क्या करता है? Managers, if we see the definition, अगर definition देखें तो managers means those are individuals who achieve goals through other people. मैनेजर जनरली क्या करते हैं कि जो उनके नीचे के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे वो काम करवाते हैं. वो अपना टारगेट अपने नीचे के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे करवाते हैं. जनरली मैनेजर एक्टिविटीज़ आर मेकिंग डिसीजंस, वो डेली डिसीजंस लेते हैं. एलोकेटिंग रिसोर्सेज, उनके पास जो रिसोर्सेज है दे विल एलोकेट. डायरेक्ट एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स टू अटेन गोल्स, वो अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करते हैं, उनको पाथ दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि वो अपनी एक्टिविटीज़ किस तरह से करेंगे. वेयर मैनेजर्स वर्क, दे जनरली वर्क इन अ ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी. हियर वी कैन सी द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट और कंपोज्ड ऑफ 2 or more person that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals. Management functions, we can see planning, organizing, leading and controlling. We'll see one by one. Planning, in short, you can see selecting goals and ways to attain them. Organizing means assigning responsibility or task. Leading or guiding, that is use influence to motivate. And last, controlling, that is monitor activities and make corrections. We'll see the first function, that is planning. Planning means what? Planning means defining goals and objectives. जनरली हम जो डेली लाइफ में भी प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हम पूरे दिन की एक्टिविटीज़ करेंगे, तो हम एक गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. डिसाइडिंग व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ द कंपनी विल एंगेज इन, हमने और आगे क्या क्या करने वाली है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाली है, उसके बारे में प्लानिंग करेंगे. डिटरमाइनिंग द रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. Next function, that is organizing. Organizing, that means grouping of activities. अलग अलग एक्टिविटीज़ जो होती है उसको एक ग्रुप में करके, यानी कि all the activities are clubbed together, grouped together, which
which is generally named as a department. Conflict resolution and authority and responsibility, which are the basic two pillars of organizing, जिसके ऊपर पूरा ऑर्गेनाइजिंग बनता है. एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और उसके मुताबिक वो काम करते हैं. दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग. अनदर थिंग इज़ डेलीगेशन. डेलीगेशन मीन्स टू गिव. हाउ अ मैनेजर delegates his authority and responsibilities to his subordinates or downward people, कि वो अपने पास जो अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट कर देता है ताकि वो अपना काम करवा सकें. एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. वट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन दे विल अलोकेट टू देयर एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट फंक्शन दैट इज डायरेक्टिंग और लीडिंग. डायरेक्टिंग मीन्स व्हाट? डायरेक्टिंग मीन्स टू गाइड, टू शो अ पाथ. लीडिंग फॉर बेटर वर्क. स्टिमुलेटिंग टू वर्क मोर. मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट यानी कि मोटिवेट करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा मोटिवेट करा के उनसे ज़्यादा काम करवा सकते हैं. गिविंग मोटिवेशन. स्पेसिफाइंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. कौन कौन से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो बताएंगे. क्रिएटिंग गुड वर्किंग कंडीशंस. दे विल क्रिएट अ गुड वर्किंग एटमोसफियर. गिविंग गाइडेंस. they will guide, managers will guide to their subordinates that how they can do their work, वो अपना काम किस तरह से करवा सकते हैं. एंड शोइंग अ पाथ. अगर कोई एम्प्लॉयज़ को पता नहीं चल रहा है कि मुझे कैसे काम करना है, कैसे कहाँ से जाना है, तो मैनेजर्स उनको रास्ता दिखाएंगे. यू डू दिस टास्क इन दिस वे, आप अपना काम इस मैनर में कीजिए. कंट्रोलिंग, दैट मीन्स चेकिंग परफॉर्मेंस. जनरली इन कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारी जनरल लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, कंट्रोलिंग मीन्स अंकुश, लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा हम अलग डायरेक्शन में देखेंगे. कंट्रोलिंग मीन्स मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से कंट्रोल करता है. मैनेजर्स गिव टास्क टू देयर एम्प्लॉयज़. अपने एम्प्लॉयज़ को काम देता है, वो काम एम्प्लॉयज़ ने कितना किया है, जो उनको टाइम मिला है वो टाइम में वो कितना काम करता है. अगर वो कम काम करता है तो फिर उसका रीज़न क्या है. मैनेजर्स हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाई दिस टास्क इज़ नॉट डन एंड दे हैव टू फाइंड वेरियस रीजंस. After finding the reasons, they will solve their problems. क्यों वो नहीं हो रहा है, and they will take corrective decisions. Here you can see checking performance, comparing actual targets with performance. Employees का जो actual performance है उसको target के साथ compare करेंगे. Then finding deviation, कितना gap आया है. Then taking corrective actions, कि उसके corrective actions वो क्या क्या लेंगे. Monitoring performance of people and units. Identification of performance problems and actions to correct problems. Okay, so those were various functions of management. Now here you can see time spent in carrying out managerial functions. अलग अलग मैनेजर फंक्शंस पे कितना टाइम जनरली स्पेंड होता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज़ मैनेजमेंट लेवल. पिरामिड शोज दैट अपर पार्ट इज़ ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स, जहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर्स आते हैं. मिडल, दिस इज मिडल लेवल मैनेजर्स. यहाँ पे सबसे लास्ट में बॉटम लेवल मैनेजर्स, और यू कैन से फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर. अभी जो 4 फंक्शंस मैंने आपको बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो तीनों लेवल के मैनेजर्स वो कौन सा टास्क या कौन सा फंक्शन कितने टाइम में वो स्पेंड करता है वो हम देखेंगे. जैसे कि फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, तो उसमें टॉप लेवल मैनेजर्स ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है. यू कैन सी मोर प्रपोर्शन ऑफ प्लानिंग इन टॉप लेवल मैनेजर्स, वेयर एज इफ़ यू गो डाउनवर्ड्स द प्रपोर्शन विल रिड्यूस. तो प्रपोर्शनली ये धीरे धीरे कम होता जाएगा. मिडिल लेवल मैनेजर्स और फर्स्ट लेवल मैनेजर्स वो प्लानिंग के पीछे बहुत कम टाइम स्पेंड करता है, बिकॉज प्लानिंग इज़ मेजरली फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स. तो उनको ज़्यादा प्लानिंग करना होता है. दे हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस. दैट इज़ वाई दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन प्लानिंग. सिमिलरली इन ऑर्गेनाइजिंग, managers have to spend more time in organizing. They have to delegate authority and responsibility. They have to allocate resources. They have to allocate tasks. That is why they are spending more time in organizing. And by various levels, if you go downwards, middle level managers and first level managers, तो वहाँ पे वो टाइम है वो कम होता जाएगा. We'll come to leading afterwards, but similar to planning and organizing, controlling is also there. That more proportion is covered by top level managers in controlling, and जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो कम होता जाएगा. लेकिन this is a directing or leading, where you can see somewhat reverse position, where less proportion or less time is spent by top level managers in controlling
लेकिन आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो ये प्रपोर्शन ज़्यादा होता जाएगा। ऐसा क्यों? वाई? बिकॉज टॉप लेवल मैनेजर्स हैव टू जस्ट गाइड, हैव टू जस्ट थ्रो द ऑर्डर्स। वो सिर्फ उनको बोलते हैं कि ये आपको काम करना है, लेकिन नीचे जो बॉटम लेवल मैनेजर्स हैं, फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर्स हैं, उनको अपने वर्कर से या फिर अपने जो लेबर हैं उनसे काम करवाना होता है। तो उनको कंट्रोलिंग करना, उनको गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना, दैट इज़ क्वाइट मोर डिफ़िकल्ट। उनके पीछे उनको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉटम लेवल में डायरेक्टिंग यानी कि लीडिंग, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। यू कैन सी मैनेजमेंट लेवल्स एंड टाइम स्पेंड ऑन फंक्शंस, दिस आर गिवन इन अ फिगर। जो हमने आगे प्रपोर्शन देखा था वो यहाँ पे फिगर वाइज दिखाया है, परसेंटेज में दिखाया है कि कितना टाइम अलग अलग लेवल पे मैनेजर स्पेंड करते हैं। जो हमने लास्ट में मैंने अभी बताया, लीडिंग जहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर्स सबसे कम टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन आप जैसे नीचे जाओगे लोअर लेवल मैनेजमेंट, वहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। दिस इज़ मैनेजमेंट हायरार्की और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, फर्स्ट लेवल मैनेजर्स। You can see various designations in various management levels. Top level management includes board of directors, president, executive vice president. Middle level management includes departmental head, HODs, plant manager, plant supervisor. Lower management includes posts like foreman and supervisor. Other designations, other posts also you can see like top level managers, which include CEO, CFO, CEO. Middle level managers includes general manager, plant manager, regional manager and divisional manager. Lower level posts or job titles are office manager, shift supervisor, department manager, foreperson, crew leader, store manager. These are various skills used, there are 3 levels: top level, middle level, supervisor level. If you draw a line here, then the skills are segregated. Like top level people using less technical skills, middle level using middle proportionately technical skills, whereas supervisory level or bottom level are using more technical skills because they have to deal with machines, they have to go in field, so they require more technical skills. Human skills are how you get work through people. जनरली हम लोगों से किस तरह से काम करते हैं, our skills, our verbal skills, that is similar at all levels. Conceptual and designing skills, where managers have to more deal with planning kind of activities or decision making, तो वो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल में रहता है। तो कंसेप्चुअल एंड डिज़ाइनिंग स्किल्स टॉप लेवल में ज़्यादा आएगा, और जिस तरह से आप नीचे जाओगे कंसेप्चुअल एंड डिज़ाइनिंग स्किल्स वो कम होता जाएगा। नाउ विल सी रोल्स ऑफ अ मैनेजर, सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फॉर वंस बिहेवियर, दैट इज़ रोल। मैनेजर का रोल जनरली क्या होता है, तो एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है जो दूसरे लोग उनसे रखते हैं। देयर आर बेसिकली दिस रोल्स आर 10, बट इट इज़ डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इंफॉर्मेशनल, सेकंड इंटरपर्सनल, थर्ड डिसीजनल। There are three roles divided in these 3 categories. We'll see one by one. First one is informational category, where majorly managers are dealing with information, where they pass information to inside or outside of the organization. The first role is monitoring. What managers do as a monitor? They seek and receive information, scan periodicals and reports, maintain personal contacts. यानी कि मैनेजर्स जो होते हैं वो इनसाइड या आउटसाइड जो इन्फॉर्मेशन गेन करता है, कहीं बाहर से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मैगजीन्स पढ़ता है, रिपोर्ट्स पढ़ता है, पीरियडिकल्स पढ़ते हैं, वहाँ से उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जनरली द टास्क इज काइंड ऑफ स्कैनिंग और मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन. सेकेंड, डिसमिनेटर, वेयर दे फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन वो पास करते हैं, फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन मेम्बर्स, सेंड मेमोज एंड रिपोर्ट्स, मेक फ़ोन कॉल्स. अगर मैनेजर किसी को फ़ोन करता है या फिर कोई मेमो देता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन पास करता है, दैट इज डिसमिनेटर. स्पोक पर्सन, दैट इज ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स थ्रू स्पीचेस, रिपोर्ट्स और मेमोज. Very good example given here. That is, for example, Mr. Ratan Tata announces about his new car in a press conference. जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रतन टाटा जी ने जो अपनी नई कार टाटा नैनो जो लॉन्च की थी, तो वो इसी का एग्जांपल है. वेरी स्पोक्स पर्सन, जहाँ पे मैनेजर
कंपनी के इनसाइड की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर ले जाता है. सो दिस 3 कैटेगरीज इंक्लूड्स रोल्स ऑफ अ इंफॉर्मेशनल कैटेगरी. Second category, that is interpersonal, where the first role is figurehead, where manager performs formal and symbolic duties such as greeting visitors जो बाहर से आते हैं उनको greet करना, signing legal documents, manager जो legal documents में sign करता है, it can be a promotional letter or somebody's resignation letter, तो उसके ऊपर जो अपना वो sign करता है, that is in figurehead role. One example given here, that college dean awarding degree to convocation ceremony, डिग्री पे जो साइन होता है, there is also a role of figurehead. Second, leader, direct and motivate subordinates. मैनेजर का जो एक important रोल है being a leader, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट एंड मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स, ट्रेनिंग, काउंसलिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद सबऑर्डिनेट्स. अपने जो नीचे के एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कम्युनिकेट करना, उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, काउंसिल करना. It is a role of leader. Third, liaising. That means maintain informational links both inside and outside the organization. They generally use mails, phone calls, conduct meetings. Example, manager interacting inside and outside of the organization. Manager generally inside or outside of the organization जो communication करता है, that is called liaising. Third category, that is decisional role, जिसके अंदर आता है एंटरप्रेन्योर, वेयर मैनेजर इनिशिएट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, आइडेंटिफाई न्यू आइडियाज़, डेलीगेट आइडियाज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स, जिसमें एम्प्लॉयज़ को वो मोटिवेट करता है या फिर अपना जो कोई नया प्रोजेक्ट है, नया आइडिया है, कोई नया इनिशिएटिव लेता है, वो आएगा एंटरप्रेन्योर. डिस्टर्बेंस हैंडलर, टेक करेक्टिव एक्शंस ड्यूरिंग डिस्प्यूट्स और क्राइसिस. कंपनी में जो कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्राइसिस होता है, किसी का सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे जो इमरजेंसी जो डिसीजन लेता है वो उनका रोल बनता है डिस्टर्बेंस हैंडलर. नेक्स्ट, रिसोर्स अलोकेटर, दैट मीन्स डिसाइड हु गेट्स रिसोर्सेज. मैनेजर का एक काम होता है अपने एम्प्लॉयज़ को कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे. जनरली रिसोर्सेज आर लैंड, लेबर, मशीन, जनरली कंपनी में जो रिसोर्सेज होता है, तो कौन से रिसोर्सेज किसको कैसे मिलेंगे. डिसाइड हु गेट्स रिसोर्सेज, that means they have to do scheduling, budgeting, setting priorities, allocating money, time, material, etc. And last role, there is negotiator, represent department during negotiation of union contracts, sales, purchase, budgets, where they generally represent departmental interest. मैनेजर का एक ये भी रोल बनता है कि अपने डिपार्टमेंट को कहीं भी प्रेजेंट करना. तो एट द टाइम ऑफ सैलरी, एट द टाइम ऑफ परचेज मैनेजर नेगोशिएशन करते हैं, तो ये भी उनका रोल हुआ नेगोशिएटर, which falls under the category of decisional role. So that we have seen roles of manager. Now approaches in management thoughts. Approaches in management thoughts, that means which are the various theories have been emerged by various authors and various persons, renowned persons in the field of management. Basically that is categorized into 3 phases: classical, behavioral and quantitative and modern. Various theories are found by various authors and various persons. Here we will focus on 2 theories, that is scientific management and administrative management. First, let's see scientific management, which is found by Frederick Winslow Taylor. You can see the image of Mr. Taylor. The concept emerged in early 90s. Scientific management is concerned with knowing exactly that you want man to do and then see in that way do it in the best and cheapest way. यानी कि हम जो भी काम करवाने का हमारा तरीका है वो किस तरह से हम अच्छा कर सकते हैं, इसके ऊपर मिस्टर टेलर ने फोकस किया है और उन्होंने बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है एंड ही हैज़ गॉट दिस थियरी. टेलर एक्सपेरिमेंटेड एंड फाउंड हाउ ह्यूमन बींग्स कुड बी मेड more efficient by standardizing the work and better method of doing the work. He is focused on standardizing also. आपका काम करने का जो तरीका है वो आप किस तरह से improve कर सकते हो, better method of doing the work. And elements of scientific management. He has given certain principles in scientific management. Those are called as elements of scientific management. First, we'll see separation of planning and doing. Here you can see supervisor and worker. That means उन्होंने सुपरवाइज़र और प्लानिंग, ये 2 अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग फंक्शंस उन्होंने सेपरेट किए हैं.
प्लानिंग का जो काम है वो सुपरवाइज़र करेगा, और डूइंग यानी कि ऑपरेशनल वर्क है, जो फील्ड वर्क है, मशीन के ऊपर जो वर्क करना होता है वो काम करेगा वर्कर। तो यहाँ पे उन्होंने प्लानिंग एंड डूइंग ये दोनों काम सेपरेट कर दिया है। सेकेंड फंक्शन दैट इज फंक्शनल फॉर्मैनशिप। यू कैन सी इन दिस चार्ट फंक्शनल फॉर्मैनशिप वेयर ही हैज़ फोकस्ड ऑन वर्क डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, यानी कि अलग अलग एक बंदे को सिर्फ एक ही काम मिलना चाहिए, वर्क डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। हियर यू कैन सी एट द टॉप फैक्ट्री मैनेजर, उसके अंडर में आता है प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर है इंस्ट्रक्शन कार क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट, डिसिप्लिनरियन, और यहाँ पे है वर्कर। दैट मीन्स ये वर्कर हैं, ये लोग इनको रिपोर्टिंग करेंगे। बट यू कैन से इंस्ट्रक्शन कार क्लर्क, तो ये इट्स काइंड ऑफ क्लर्क ओनली, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही काम रहता है, दे विल दे विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर। रूट क्लर्क दे विल शो पाथ टू द वर्कर। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, वो कितना टाइम उसमें स्पेंड होता है, कितना खर्चा होता है, वो ध्यान रखेगा। डिसिप्लिनरियन क्लर्क, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ डिसिप्लिनरी मैटर्स ऑफ द वर्कर्स। तो ये सब प्लानिंग काइंड ऑफ काम हुआ। तो हर एक क्लर्क के पास एक एक काम रहता है जो ये वर्कर से लेते हैं। ऑन द अदर साइड प्रोडक्शन इंचार्ज, वहाँ पे जो अलग अलग क्लर्क हैं, गैंग बॉस विल टेक केयर ऑफ होल द टीम, उसके अंदर में जो टीम आती है, वर्कर की टीम है, उसका वो ध्यान रखेगा। रिपेयर बॉस, कंपनी में मशीन में जो भी कोई मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आता है या तो फिर कुछ मशीन में कोई डिफेक्ट आती है उसका रिपेयरिंग करने का काम रिपेयर बॉस। इंस्पेक्टर, इट मीन्स टू इंस्पेक्ट, टू चेक क्वालिटी किस तरह की है, काम कैसा हो रहा है, वो सब चेक करने का काम इंस्पेक्टर बॉस। एंड देन स्पीड बॉस, यानी कि वर्कर कितनी स्पीड में काम करता है, कम से कम टाइम में कितना अच्छा काम वो कर सकता है, वो चेक करने का काम स्पीड बॉस का होता है। सो द मेन फंक्शन इज main purpose is that one task given to only one person. Third one is job analysis, to find a best way of doing the things. Job analysis means उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे स्टडी किए हैं, उन्होंने देखा कि कौन सा तरीका है जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। जैसे जो टेलर ने जो स्टडी किए हैं, दो स्टडी आर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। टाइम स्टडी मीन्स how you can do better work in a minimum time. Motion study means how you can do better work with less motion or less movement. And last, fatigue study, where a best way to do work where laborers get less fatigue or laborers gets less movement or problematic task. Next, standardization. Standardization is a means of achieving economics of production. It seems to ensure the line of product is restricted to predetermined type, form, design, size, weight, quality, etc. Standardize means हम जनरली बोलते हैं कि सब कुछ स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज मीन्स सेम एट ऑल, सभी जगह पे एक सिमिलर स्टैंडर्ड होना चाहिए। जनरली हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी छोटा सा पैकेट हो, वेफर का पैकेट हो या बिस्किट का पैकेट हो, तो आप यहाँ से जो पैकेट लोगे वो भी उतना ही होगा साइज़ का, और अगर कोई आउट सिटी से लेंगे तो उसकी साइज़ भी सिमिलर होगी। वाई? ऑल्दो दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ सेम फैक्ट्री, तो वहाँ पे वो स्टैंडर्डाइज होता है, तो उसकी साइज़, शेप, वेट, कलर, वो सब कुछ एकदम स्टैंडर्डाइज यानी कि एक फिक्स स्टैंडर्ड का होता है। दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड। क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स हैव बीन मेंटेन्ड. Standard of performance are established for workers at all levels. Fifth, scientific selection and training of workers. कंपनी में जो वर्कर्स या लेबर्स और एम्प्लॉयज़ जो रिक्रूट किए जाते हैं, तो उनका तरीका एक साइंटिफिक होना चाहिए. इट शुड बी बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन, स्किल्स, एप्टीट्यूड, फिजिकल स्ट्रेंथ. ट्रेनिंग शुड बी गिवन, अगर ज़रूरी लगता है तो उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वेयर ही हैज़ फाइंड पीस रेट सिस्टम. पीस रेट सिस्टम यानी कि वो जितना काम करता है, लेबर, वर्कर, एम्प्लॉय जितना काम करता है उतना उनको मिलना चाहिए. अगर उन्होंने एक्स्ट्रा का वर्क किया हुआ है, एक्स्ट्रा टाइम अगर उन्होंने स्पेंड किया है, तो उनको एक्स्ट्रा मनी उनको मिलना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड एज पीस रेट सिस्टम, विच बूस्ट देयर मोरल एंड मोटिवेशन. इकोनॉमी इन प्रॉफिट, वेयर कंपनी हैव टू फोकस ऑन कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल. कम से कम खर्चे में आप ज़्यादा काम करो. लास्ट, दैट इज मेंटल रिवोल्यूशन.
दैट मीन्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कंपनी में हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से काम कर सकोगे। तो दीज आर 8 प्रिंसिपल्स, 8 एलिमेंट्स गिवन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज Henry Fayol's administrative management. Henry Fayol is also a French industrialist. He has found so many theories. He has done really a great work in the field of management, but specifically he has focused on administrative management. He focused on administration. Organization should be divided into 6 activities. उनके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ होती है, जो फंक्शंस हैं, वो 6 एक्टिविटीज़ में डिवाइड होना चाहिए। दो 6 एक्टिविटीज़ यू कैन सी हियर, लाइक टेक्निकल जो प्रोडक्शन होता है, कमर्शियल बाइंग एंड सेलिंग जहाँ पे होता है, फाइनेंशियल यानी कि सर्च फॉर कैपिटल, ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन, अकाउंटिंग इट डील्स विद स्टैटिस्टिक्स, लास्ट दैट इज मैनेजरियल जिसमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। These are 14 principles given by Mr. Henry Fayol. Henry Fayol ने 14 principles दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कंपनी में कोई भी मैनेजर या कोई भी एम्प्लॉई ये 14 principles अगर फॉलो करती है तो that will be a really nice and good company। कि अगर यहाँ पे कोई भी कंपनी में अगर आप 14 principles, ये 14 principles अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे काम एकदम स्मूथली होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा। Let's see all these principles one by one. First, there is unity of command. Here you can see in the image also that somebody is giving an order, but unity of command means instructions are ordered from only one boss. जो भी instructions आती हैं, orders आती है, वो एक ही boss से मिलनी चाहिए। If we talk about an example, I can cite an example that suppose एक pion है और उसको एक ही टाइम पे 2 से 3 बॉस या 2 से 3 मैनेजर्स उनको सिमिलरली कुछ ऑर्डर कर रहे हैं कि तुम मेरे लिए जेरोक्स ला दो, तुम मेरे लिए पानी ला दो, तुम मेरे लिए ये करो वो करो, तो वो प्यून कन्फ्यूज हो जाएगा कि कौन सा काम मुझे प्रायोरिटी पे करना है। सो द मेन प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। ऑर्डर है वो सेम टाइम पे एक ही ऑर्डर एक ही बॉस से आना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस। सेकेंड प्रिंसिपल दैट इज डिविजन ऑफ वर्क। Job or work is divided into specialized or small task, that is departments. अकेला मैनेजर, एक अकेला पर्सन ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, he has some limit. So what is generally done, job और task are divided into subordinates. मैनेजर के पास जो टास्क आता है वो अपने सबऑर्डिनेट में डिवाइड कर देगा ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके और उनसे काम निकलवा सके। थर्ड वन इज ऑर्डर। Here you can see that how nicely these chairs are arranged. So orders, it means arrangement of things and people. All materials and personnel have a prescribed place and they must remain there. Order means आप जो भी चीज़ जहाँ से लेते हो वहाँ पे रखनी चाहिए। Not only material but even the personnel also, employees also, कि उनका placement यानी कि उनका place जो है वो भी सही तरीके से होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को आप जिस फंक्शन के लिए लेते हो उसके मुताबिक उनके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। फोर्थ, इनिशिएटिव। वर्कर शुड बी इनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स। आप एम्प्लॉयज़ को इस तरह से मोटिवेट करो कि वो अपना काम खुद कर सके, खुद आगे आके कुछ बोले, वो अपना कुछ सजेशंस दे, फीडबैक दे, वो अपने आप कुछ काम स्टार्ट कर सके। सो यू हैव टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज़ to carry out their plans for improvements. Fifth principle, there is equity. Equity means equal to all, fairness to all employees, no favoritism. कई ऑर्गेनाइजेशन में हम जनरली देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एट द टाइम ऑफ प्रमोशन कुछ एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन हो जाता है, कुछ का नहीं होता है, कुछ को पहचान से वो एम्प्लॉयज़ को ले लेते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, और कुछ का नहीं होता है। तो देयर इज़ नॉट इक्वल इक्विटी, यानी कि देयर शुड नॉट बी एनी फेवरेटिज्म। सभी एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट के लिए सिमिलर होना चाहिए। सिक्स्थ प्रिंसिपल, देयर इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Authority is the right to give orders and obtain obedience, and responsibility is the effect of authority. It should be divided properly. Seventh principle, that is discipline. That means organization should follow specific rules and regulations, like generally no liquors allowed,
or tobacco or smoking is not allowed. Such rules or discipline should be there. Eighth, that is unity of direction, same objective for all with coordinated efforts. हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो गोल है वो सिमिलर होना चाहिए या तो फिर ऊपर से सेम फ्लो में आना चाहिए. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. एंड नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. एम्प्लॉयज़ का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कि वो अपना करियर का ग्रोथ करे, तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र होना चाहिए. वो किस तरह से ट्रांसफ़र होगा कि उसका जो खुद का इंटरेस्ट है यानी कि करियर ग्रोथ, तो करियर ग्रोथ भी करेगा और साथ में कंपनी का भी काम होना चाहिए. दैट मीन्स कंपनी शुड प्रोवाइड सच प्लेटफॉर्म और सच अपॉर्चुनिटीज़ कि एम्प्लॉयज़ अपना काम भी करें और अपना करियर ग्रोथ भी हो. 10th, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ रिसीव फेयर पेमेंट ऑफ सर्विसेज. एम्प्लॉयज़ जो अपना काम कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी, वेजेस वो उनको मिलने चाहिए. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन्स all the authority or controlling power is only in one hand. We can say an example of GTU like Gujarat Technological University, where various colleges across the Gujarat are controlled by only one GTU campus, that is in Ahmedabad. Decentralization means authority or controlling power is decentralized. That means it is delegated to many persons. अगर वो एक से ज़्यादा लोगों में वो डिवाइड हो जाती है authority, that is decentralization. Like ग्राम पंचायत, जिसमें अलग अलग सरपंच के पास उतनी अथॉरिटी होती है कि अपने गांव को किस तरह से डेवलप करें. देन स्केलर चेन. इट्स अ फॉर्मल चेन ऑफ कमांड रनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक मिलिट्री. टॉप टू बॉटम तक जो फॉर्मल चेन ऑफ कमांड यानी कि जो ऑर्डर्स का फ्लो होता है, दैट इज स्केलर चेन. 13, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. पर्सनल दैट मीन्स एम्प्लॉय. लिमिटेड टर्नओवर ऑफ पर्सनल और लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट फॉर गुड वर्कर्स. अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, कोई वर्कर अच्छा काम करता है, तो उनको कंपनी में परमानेंट कर देना चाहिए. उनको अच्छा आप इंक्रीमेंट दो, अच्छी फैसिलिटीज़ दो, अच्छा मोटिवेट करो ताकि वो आपकी कंपनी छोड़ के ना जाए. सो यू हैव टू फोकस ऑन एम्प्लॉय स्टेबिलिटी, क्योंकि जितनी बार वो छोड़ के जाएगा कंपनी का काम और बढ़ेगा. दे हैव टू रिक्रूट मोर पीपल और उसमें उनका टाइम, कॉस्ट और एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है. सो कंपनी हैव टू फोकस ऑन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल ऑल्सो. एंड द लास्ट प्रिंसिपल दैट इज एस्पिरेट द कॉप्स. दैट मीन्स टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हारमोनी अमंग एम्प्लॉयज़. यानी कि एम्प्लॉयज़ को टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए, हारमोनी में काम करना चाहिए. सब एम्प्लॉयज़ को एक ग्रुप में, टीम में मिलजुल कर काम करना चाहिए. तो these are all the 14 principles of Henry Fayol's administrative management. That's it for the day. Thank you very much.